radiation. Okay बच्चों? Now we are going to see देखो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक फिनिश किया है हमारे, that was conduction, convection and radiation. Okay, means how the heat has gone to be transferred from one place to another or from one body to other. In some cases the bodies must have to be in physical contact. In some other cases the molecules are going to be transferred from one place to other, as we have seen in the case of water. All of you beta, please mute yourself. Kevin Soria. Yes sir. बोलना पड़ता है नाम ले लेके. नेक्स्ट क्लास में मैं बोलूंगा नहीं, मैं सीधे रिमूव भी कर दूंगा यहाँ से. जिसका माइक ऑन हुआ रिमूव. So in the case of conduction, in the case of convection, or in the case of radiation, in all the three processes, we have seen that the transfer of heat takes place by different means. Okay. In some cases, the physical contact was essential. In some cases, both the bodies should be in physical contact. In some cases, the molecules are going to be transferred from one place to another. Now, in some cases, the heat is going to be transferred from the hot body. The heat will be transferred in the form of waves. Okay, that was radiation. So, conduction, convection, radiation, all the three was the processes of how to transfer the heat. Okay, that was the older topic. Now, right now we are seeing here the preventing the loss of heat. देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट. ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको हर तरह के प्रोसेसेस में पड़ेगी. मीन्स द हीट मे बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, मे बी बाय कॉन्वेक्शन, मे बी बाय रेडिएशन, वॉट एवर द प्रोसेसेस विच द पर्सन विल अडॉप्ट. ओके, whatever the processes by which the heat will be transferred. The ultimate aim is, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमारी जो हीट एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए? प्रिवेंट होनी चाहिए. हीट एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हीट एनर्जी अगर वेस्ट होगा then ultimately our resources will get wasted. For example, अगर आप LPG सिलेंडर्स का यूज कर रहे हो, with the help of LPG you are providing heat to some body. Okay, आप किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहे हो. बाई चांस किसी वजह से मान लो अगर हीट लॉस होता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली में वो हीट आप कुकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाओगे. ठीक है ना, दैट विल बी लॉस. वो तरह का लॉस है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, दैट व्हाट प्रिकॉशंस एंड द व्हाट स्टेप्स शुड बी टेक इन ऑर्डर टू नॉट अलाउ द हीट टू मूव एट समवेयर एल्स अदर देन द. So let's have a see. What is in this topic? Anyone want to say something? Okay. Now see. Preventing the loss of heat. A thermos flask is a good example of how the heat loss by all three modes of heat transfer. Means whenever the heat will be transferred by the means of conduction, convection or radiation. Whenever the transfer of heat takes place by conduction, convection and radiation, how the heat will be transferred? ओके, तो इस केस में हम लोगों ने एक थर्मोप्लास्ट का एग्जांपल लिया है, फिगर 6.9 का. या थर्मोप्लास्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ द हीट लॉस. ठीक है बच्चों. नाउ सी, लेट अस सी हाउ दिस इज डन. हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन इज मिनिमाइज्ड by using
insulating materials such as plastic for the outer casing of the cap of the thermos flask. The inner jar is a double-walled bottle. The inner jar is a double-walled bottle made of glass or stainless steel. The inner jar is a double-walled bottle made of glass or stainless steel. The space between the two walls is a vacuum, so that the heat loss due to conduction is minimized. देखो बच्चों, यहाँ पर एक अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है. Means with the help of flask, now we can understood that how we can preserve the food. What arrangement should I adopt in order to not allow the heat to be moved out? Okay. Whatever the heat which has been supplied to the system, that heat should be maintained in the system only. It should not require to be moved at somewhere else. है ना? एक बार हमने हीट को सिस्टम में सप्लाई कर दिया, उस हीट को उसी सिस्टम में रहना है, उसको यहाँ वहां मूव अप नहीं करना है. ठीक है. तो इस तरह का काम हम कैसे करेंगे, ये काम हम कैसे कर पाएंगे, प्रैक्टिकली कैसे होगा? दैट इज व्हाट द अरेंजमेंट हैज बीन गिवन कि वी हैड मेड द थर्मस फ्लास्क. हमने फ्लास्क बनाया है, क्या नाम रखा हमने उसका? थर्मस. उसमें अगर आप गर्म पानी डालते हो, ऐसा नहीं है कि गर्म पानी अगर आप डालोगे तो वो कूल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, whenever I will put the hot water, it will not cool. It will become cool, but it will take more time. Generally, in a normal glass, whenever I will put a glass of hot water, hardly it will take 15 to 20 minutes to become cool down. But in the thermos, it will take 6 to 10 hours to become cool. Okay. Then this will ultimately help me in order to preserve the energy inside the system. किसी एक सिस्टम में अगर आपने हीट एनर्जी अप्लाई की है, तो उसकी एनर्जी उसमें मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा. ठीक है. द इनर जार. अब देखो बच्चों, ये थर्मस को बनाने के लिए किस तरह से हमने सोच, हमारी थिंकिंग किस तरह की थी और हम लोगों ने किया क्या. देखो, द इनर जार इज अ डबल लेयर्ड, डबल वॉल्ड बॉटल made of glass or stainless steel. The space between the two walls is a vacuum. देखो, यहाँ पर हमने दो तरह के फ्लास्क का यूज किया है, एक अंदर और एक बाहर. ठीक है. बाहर वाले फ्लास्क को और अंदर वाले फ्लास्क को, दोनों के बीच में हमने स्पेस प्रोवाइड की है. ओके. द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स इज अ वैक्यूम. और दोनों के बीच में हमने वैक्यूम भर दिया. वैक्यूम मतलब दोनों के बीच की जो एयर थी उसको हमने बाहर निकाल दिया. अच्छा, अब क्या हुआ भाई? देखो, this also reduces the heat due to convection, as there are no air molecules to carry the heat away. देखो बच्चों, हीट लॉस कैसे होगा? हीट लॉस या तो कंडक्शन के थ्रू होगा, या तो कन्वेक्शन के थ्रू, या तो रेडिएशन के थ्रू. ठीक है ना भाई. कोई भी बॉडी अगर हॉट है, कोई भी बॉडी अगर गर्म है ना, कोई सी भी बॉडी मान लो अगर वो हॉट है, अगर वो गर्म है, तो वो अपनी एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करेगी? या तो कोई दूसरी बॉडी उसको टच करे बाय द मीन ऑफ कंडक्शन, या तो फिर उसके पार्टिकल्स मूव करें. है ना भाई. वो अपनी एनर्जी अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में अप्लाई करे, तो वहां के पार्टिकल्स हॉट होंगे और हॉट होकर के वो उस हीट एनर्जी को लेकर के ट्रेवल करेंगे. है ना. दे विल कैरी द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट वाज द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट नंबर, रेडिएशन. कि वो हीट को ना ही वो टचिंग के थ्रू जाएगी, ना ही वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू मूव करेगी. वो मूव करेगी ऑन इट्स ओन फीट, अपनी प्रॉपर्टी की वजह से. द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी, दैट इज इट विल ट्रांसफर, इट यूज्ड टू बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वेव. वो वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होती है ना. तो ये वाली बातें हैं.
तो किसी भी तरह से अगर मैं इन तीनों को कंट्रोल कर लूं, है ना, मैं कंडक्शन ना होने दूं, मैं कॉन्वेक्शन ना होने दूं, अगर किसी तरह का रेडिएशन होता है तो उसको मैं मिनिमाइज कर दूं, देन देयर विल बी अ मैक्सिमम चांसेस टू प्रिजर्व द हीट। ठीक है, देखो थर्मस में हमने हॉट वाटर फिल किया, हॉट वाटर फिल करने के बाद वो वाटर अपनी हीट लूज करेगा। कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन और कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। भाई कंडक्शन तो तब होगा जब उसमें कुछ टच होगा। इनर बॉडी जो है, जो इनर आपका फ्लास्क है, इनर बॉटल जो हमने यूज किया है ना, दैट वाज अ डबल वॉल्ड, वहां पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल बॉडी टच नहीं है। ठीक है ना, वहां पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल बॉडी टच नहीं है। एक्सटर्नल बॉडी टच ना होने की वजह से हीट का कंडक्शन नहीं हो रहा। दिस इज ऑल्सो रिड्यूसेस द हीट लॉस ड्यू टू द कन्वेक्शन एज देयर आर नो एयर मॉलिक्यूल्स टू कैरी द हीट अवे। मतलब इनर वॉल्ड, द डबल वॉल्ड इनर सरफेस से हीट को लेकर के बाहर की वॉल तक जाने के लिए इन दोनों के बीच में जो एयर थी, आउटर वॉल और इनर वॉल, इन दोनों के बीच में जो एयर थी, उस एयर को भी हमने निकाल के बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि भाई कॉन्वेक्शन के थ्रू अंदर की हवा गर्म होगी और वो अपने हीट को लेकर के बाहर के सरफेस के पास जाएगी, अल्टीमेटली में इससे हीट ऑफ लॉस होगा। एक्सक्यूज मी। तो हमने क्या किया? हमने इन दोनों के बीच की एयर को निकाल के बाहर कर दिया। ठीक है, this is what we have done. Now, if the heat want to be go out, then the heat must have to do only one thing. Heat cannot be transferred from inner to the outer surface by conduction, by convection. It will be transferred only by radiation. ठीक है, अब मेरे सामने चैलेंज क्या है? मेरे सामने ये चैलेंज है कि मैं रेडिएशन को कैसे रोकूं। रेडिएशन को रोकने के लिए ही तो अंदर का जो फ्लास्क मैंने बनाया है, द इनर फ्लास्क इज मेड अप ऑफ डबल लेयर, सो दैट द हीट विल बी मूव आउट मिनिमम। द हीट विल बी मूव आउट मिनिमम। ओके, so these all efforts will ultimately help me to keep inner water hot. ठीक है, heat loss due to radiation is minimized by making the surface of the jar highly reflective. आमतौर पे बच्चों, जो समरफुल बॉटल आपको मार्केट से मिलती है, उसका सरफेस कैसा होता है? स्टील का होता है और रिफ्लेक्टिव होता है ना। सनलाइट अगर पड़ेगी उसके ऊपर तो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रेडिएट कर देगा। ठीक है, so that the heat radiations are reflected back into the jar. हाँ बेटा बोल। Sir, see Adi, sir, he's continuing left and joining. Yes, sir. See, he is continuing. ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आप लोग को? तो ये टॉपिक हमारा दैट वाज द प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट। इसमें बच्चों हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। व्हाट वी हैव डन, वी हैव थिंक अबाउट दैट हाउ द लॉस ऑफ हीट विल बी डन। लॉस ऑफ हीट कैसे होगा? एक एक करके सभी कॉजेस को हमने सिलेक्ट कर दिया। द फर्स्ट कॉज दैट वाज कंडक्शन, सेकेंड नंबर कॉन्वेक्शन, थर्ड नंबर रेडिएशन। तो कंडक्शन और कॉन्वेक्शन को तो हमने फिनिश ही कर दिया। जो थर्ड नंबर बचा है आपका रेडिएशन, radiation was the only reason that why the heat of the inner flask will become cooler. मतलब अंदर के फ्लास्क की जो हीट है वो कभी ना कभी कम हो जाएगी, आगे चल के वो कभी ना कभी कम हो जाएगी। तो कभी ना कभी कम क्यों होगी? Because even though we have taken a lot of steps to preserve the heat, but the heat will be lost. हीट का लॉस होगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हीट लॉस कैन नॉट बी स्टॉप्ड। Heat loss cannot be stopped. The only thing is that we can increase the time duration for the loss of the heat. Okay, that is what we can do. That is what
द प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ हीट, इसीलिए जो हमारा टॉपिक है क्या नाम है उसका, प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट, नॉट स्टॉप द लॉस ऑफ हीट. द लॉस ऑफ हीट कैन नॉट बी स्टॉप, वी कैन प्रिवेंट इट, वी कैन मिनिमाइज इट. ठीक है. तो चलो बच्चों, आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 6, दैट वाज टेम्परेचर ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड हीट. ओके. Now the chapter question answers objective and जो भी आपका chapter textbook exercises solution will be given to you very soon. आज या कल में आपको मिल जाएंगे. सर बोलो बेटा. सर हमें का रिजल्ट कब चलेगा? वो बेटा आपको रिसेप्शन से मालूम चलेगा. Okay, now children, so today we have done this chapter. Anybody of you is having any doubt in this chapter? So before leaving this chapter, I want to know, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम आगे शुरू करें. चलो, तो फिर चैप्टर नंबर 6 में कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. Now today we are going to start the chapter number 9, respiration in organism. All of you, please open the page number 132. Respiration in organism. Page number 132. तो चलो बच्चों, मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ हमारा न्यू आज का. Now it is respiration in organism, which is chapter number 9. Chapter number 9, respiration in organism. So now tell me what we are going to study in this chapter. In this chapter, we are going to study about this, how the respiration process will take place in the organism. Okay. Now let me tell you that respiration is one of the catabolic reaction which will done in all the animals. Respiration एक तरह का कैटाबॉलिक रिएक्शन है. कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब एक तरह का ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके थ्रू फूड आइटम्स डिवाइड होते हैं. फूड आइटम्स बनते नहीं. फूड, व्हाटएवर फूड विच वी आर ईटिंग, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन द फूड आइटम्स विल गेट ब्रोकन डाउन. फूड आइटम्स जो होंगे वो टूटेंगे और उनके टूटने की वजह से हमें क्या मिलेगा? वी विल गॉट दी एनर्जी. ठीक है ना? So all of you now please come on the page number 132. See, if you observe your breathing movement, you will feel a slight but regular upward and downward movement of the chest. The movement indicates breathing in and breathing out. There are a number of organs involved in it. These organs together make up a system called the respiratory और बाहर निकालते हो. इस तरह से ये काम जितने एनिमल्स के करने वाले इन कामों को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे. ठीक है ना? द सिस्टम इन विच द रेस्पिरेशन इज डन. ओके. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फाउंड
in all living organisms, though with varying levels of complexity. Let us learn more about it. Now, respiratory system. Respiratory system क्या होता है? एक मिनट रुको. Just a minute. अक्षय परमार. अक्षय परमार. दिया दर्शानिया. दिया. बेटा आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? Who will read today? Sir, may I read? Sir, I will read. करो, रीड करो. सर हर बार ना सर मैं रीड करूँ ना. एक मिनट रुको. जस्ट अ मिनट रुको तो. अक्षय परमार है लिस्ट में? नहीं है ना? रुको एक मिनट. धरती शेफर. मेरी आवाज आ रही है? धरती शेफर. धरती शेफर. एक मिनट रुको. हाँ क्या आया चैट बॉक्स में? स्टेला. हाँ बेटा स्टेला. नाउ यू कैन रीड. स्टेला प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 133. Respiratory system. Yes, sir. Yes, beta. Continue. All living organisms are made up of a number of cells. Each of these cells requires oxygen to break down food and obtain energy. The intake of air rich in oxygen is the first step. This is called inhalation or breathing. The next step involves a series of which help in the release of energy. Several inhibitors and catalysts are in this process. Reaction with water and carbon dioxide. Carbon dioxide is toxic to the body, so it is called exhalation or breathing. This completes the cycle. The fundamental breathing and respiration is the following. Of intake out and giving out a rich in carbon respiration. The breakdown of food. Okay. Process of inhalation. Okay. देखो बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी ऑन द बोर्ड. Respiratory system is the system that how we are going to take oxygen in our body and how we are going to move out the internal carbon dioxide to the atmosphere. Okay, we will allow the atmospheric air to be go in our lungs. In our lungs, the exchange of gases will be done.
in my body oxygen will be used and carbon dioxide will be moved out, but the intake of oxygen and the outtake of CO2 means the body will absorb oxygen and the CO2, that was carbon dioxide, will be given back from the body. My body will absorb oxygen and carbon dioxide will be given back. This work will be done in the lungs. जो हमारे lungs हैं, हमारे lungs में ये काम होता है, ठीक? Now, because of this, my whole body will get oxygen. My whole body will get oxygen. That oxygen will be used to produce energy. The energy which we are using to do all the different vital functions. रोज के जितने भी हम काम करते हैं, ये सारे काम हम करने में सक्षम हो पाते हैं. We are capable to do all the work just only because of the respiratory system. Because of respiratory system, oxygen has gone in our body. Oxygen will be the reason to produce energy in my body. That energy will help me to do all the vital activities of the vital work of day-to-day life. ठीक है बच्चों? तो आप लोग को ये बात समझनी है कि what is the intake and what is the outtake. Intake का मतलब क्या होता है? अंदर लेना. Intake का मतलब होता है किसी भी चीज को अंदर लेना. Outtake का मतलब होता है उसको बाहर निकालना. ऑक्सीजन को अंदर लेना intake, CO2 को बाहर निकालना outtake. ठीक है? Now, तो बच्चों इसके लिए दो तरह की बातें हैं. ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है? Yes, Stella, continue. Breathing and respiration difference. Yes, sir. Breathing. It is the process of inhalation and exhalation. It is a physical process. No chemical reaction takes place. Only an exchange of gases is involved. Second, no enzymes or other catalysts are. Beta, 1 point breathing and the 1 point respiration. Okay, sir. Like this. Now respiration. It is a series of chemical reactions that result in the release of energy by the oxidation of food molecules. Second, no enzymes or other catalysts are involved. Wait. Now see what they are saying. Breathing and respiration. Breathing क्या है बेटा? Breathing एक exchange of gases है. मतलब breathing मतलब क्या होता है? देखो मुझे देखो. All of you. ये क्या है? Breathing. In the breathing, I will allow external air to go in my lungs. ये जो बाहर आप जो एयर देख रहे हो, ये मेरे लंग्स में जाएंगे. इनके लंग्स में जाने की वजह से लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होगा. ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, CO2 बाहर आएगा. उसके बाद मैं उसको अपने नोज से बाहर निकाल दूंगा. I will allow the atmospheric air to go in my lungs. And then after, I will allow, make it to be outside, make it to be out from the body. बॉडी के अंदर लेना, उसके बाद बॉडी से बाहर निकालना. अंदर लेना और बाहर निकालना, इसी के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है. ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाती है और हमारे ब्लड का CO2 बाहर आ जाता है. ठीक है? तो ये क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है. इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. ब्रीदिंग में सांस लेना और सांस बाहर निकालना, एयर को अंदर लेना और बाहर निकालना, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन तो हुआ नहीं. ठीक है ना? तो ये क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है. ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है. हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा, कई तरह के प्रोसेसेस पढ़े, हम लोगों ने चेंजेस पढ़े हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस. तो इसमें फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा. फिजिकल चेंज क्या होगा? फिजिकल चेंज ये होगा कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल पहले कम था, लेकिन ब्रीदिंग करने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया. ठीक है? दैट वाज द फिजिकल चेंज. रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज है, जैसे आप जो खाना खाते हो, तो खाना खाने की वजह से जब आप फूड ईट करते हो, उस फूड से आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज. ठीक है ना? आप फूड ईट करोगे, उससे आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा. वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, वो ग्लूकोज ब्रेक होगा अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों साथ में रहेंगे और ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज क्या होगा? टूट जाएगा. ग्लूकोज क्या है बेटा? ग्लूकोज एक केमिकल सब्सटेंस है.
ग्लूकोज प्लांट से आता है, ठीक है ना, ग्लूकोज हमें फूड से मिलता है, ठीक है, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज टूटेगा, ब्रेक होगा, ठीक है, तो ग्लूकोज के ब्रेक होने की वजह से अंदर से एनर्जी बाहर निकलेगी, वो एनर्जी हमें हेल्प करेगी हमारे डे टू डे, हमारे वाइटल, हमारे रोज के वाइटल वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक फर्क है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में। नेक्स्ट नंबर 13। Yes, sir. No enzymes or other catalysts are involved. Respiration. Enzymes and other catalysts are involved. नाउ से ब्रीदिंग में आपने क्या काम किया? आपने केवल एयर को अंदर लिया और एयर को बाहर निकाल दिया। एयर को सबसे पहले अंदर लिया, उसके बाद एयर को बाहर निकाल दिया। भाई यहाँ पर किसी एंजाइम का यूज हुआ नहीं है ना, भाई यहाँ पर डाइजेशन का कोई रोल प्ले तो नहीं है। इसमें ब्रीदिंग में किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ ना। एयर आपके लंग्स में गई, एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, वहां से बाहर निकल गया। इसमें क्या केमिकल चेंज हुआ? कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। एयर अंदर गई और एयर अंदर से बाहर आ गई, दैट्स ऑल। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन में आपने खाना खाया है, उस खाने से आपको क्या मिला? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है। तो किसी भी केमिकल को ब्रेक करने के लिए केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में, केमिकल रिएक्शन को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज खुद में एक केमिकल है, उस केमिकल को ब्रेक करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना, हम कुछ केमिकल्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग इज अ टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वेयर एज ब्रीदिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द फिजिकल रिएक्शन, जहां पर केवल इनटेक और आउटटेक होता है। वहां पर किसी भी तरह के एंजाइम्स का यूज नहीं होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड नंबर चला, It takes place outside the cells. It takes place inside the cells. वेट, एक्सचेंज ऑफ गैस कहां होगा? हमारे सेल्स के अंदर होगा। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए आप एटमॉस्फेयर को अपने लंग्स में डालोगे, आप एयर को अलाउ करोगे आपके लंग्स में जाने के लिए। एयर में 21% ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी, ठीक है, ब्लड में जाएगी और आपके ब्लड का CO2 आपके लंग्स में आएगा। लंग्स का ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और ब्लड का CO2 लंग्स में आएगा। ये क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे आपके बॉडी के सेल्स को, लिवर के सेल को, हार्ट के सेल को, किडनी के सेल को कोई मतलब नहीं है। आपके लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, इस एक्सचेंज ऑफ गैस से आपके हार्ट, लिवर, किडनी को कोई मतलब नहीं है। दे विल गेट ऑक्सीजन बाय द ब्लड, दे विल गेट ऑक्सीजन बाय द ब्लड, ब्लड के थ्रू उनको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस आपके सेल्स के बाहर होती है, लेकिन रेस्पिरेशन आपके सेल के अंदर होता है। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विल बी टेक प्लेस इनसाइड योर सेल, बट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस आउटसाइड द सेल, ठीक है। फोर्थ नंबर चला, No energy is released during this process. Energy is released during this process. यस, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहा हूं, तो एक्सचेंज ऑफ गैस में मैं क्या कर रहा हूं? ऑक्सीजन ले रहा हूं, CO2 बाहर दे रहा हूं। क्या यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एनर्जी का फॉर्मेशन सेल के अंदर होता है, लंग्स के अंदर नहीं होता। लंग्स में केवल एक्सचेंज होता है, O2 मेरी बॉडी में जाएगा और CO2 बॉडी के बाहर निकलेगा, दैट्स ऑल। ओनली एक्सचेंज ऑफ गैस विल बी टेक प्लेस इन माय लंग्स, but the production of energy, it will be done in my cells in the presence of oxygen and glucose. तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू मुझे, ब्रीदिंग के थ्रू, with the help of breathing I have taken oxygen, with the help of digestion I got glucose. Glucose and oxygen, they both combine together to produce energy in my cell, सेल के अंदर, लंग्स के अंदर नहीं, ठीक है ना।
तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जहां पर किसी भी तरह की एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि रेस्पिरेशन एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, वहां पर ग्लूकोज ब्रेक होता है। जब ग्लूकोज ब्रेक होगा तो वहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। दैट वाज द केमिकल प्रोसेस। नाउ खुशी कासुंद्रा, Yes, वेट sir. बेटा वेट, येशा पनारा, येशा, Yes, sir. येशा पनारा, getting my voice? Okay, she is not getting my voice. हाँ बेटा, तो रीड करोगे आप? Yes, sir. ओके बेटा, चलो मैं अभी अपनी हेडिंग चेंज करता हूँ। यू स्टार्ट रीडिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। येशा, स्टार्ट। Yes, sir. Sir. The basic हाँ बेटा, पढ़ो। processes of respiration are similar in all plants and animals and results in the release of energy. In unicellular cellular animals, from the water or air and carbon dioxide is released by diffusion. About 21% of that is oxygen, but in water, 5% of oxygen at normal temperatures. In higher animals, ओके बेटा, वेट, येशा वेट। देखो बेटा, ये लोग क्या बोल रहे हैं। अभी अभी आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। नाउ दे आर टेलिंग यू अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द एनिमल्स, मतलब हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट changes will be done in my body, what I will get, what will be the benefit to my body because of this system. So now see बच्चों, इस सिस्टम को हमारे अंदर पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। that the percentage of oxygen will be more in the atmosphere as compared to the water. In the water, the percentage of oxygen will be less. In the air, the percentage of oxygen will be more. So the organisms, those who are living on the land, they will be more active as compared to the animals, those who are existing in the water, because their body will get less amount of oxygen. The animals existing in the water, they will get less amount of oxygen. So their body will produce less amount of energy. Their body will produce less amount of energy. Okay. And the organisms, those who are living on the land, they will get more amount of oxygen, so their body will produce more amount of energy. This will ultimately help to do all the vital activities. Okay. Now, the exchange of gases will be done on the basis of diffusion. Diffusion का मतलब क्या होता है बच्चों? I believe कि आप सभी लोगों ने नोटबुक और रफ पेपर या रफ नोटबुक और पेंसिल आप लेके बैठे होंगे। Now, diffusion का मतलब क्या होता है? All of you, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ओके, whenever the particles move from higher concentration to lower concentration. Whenever the particles move from higher concentration to lower concentration, okay, now this process will be called as a diffusion. अब आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या हो? आप एनिमल हो, ठीक? आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक? जब आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लोगे तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है और आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन।
कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में CO2 ज्यादा है और लंग्स में CO2 कम है। आपकी बॉडी में CO2 ज्यादा है, लंग्स में CO2 कम है। CO2 will move from your body to the lungs. That is from higher concentration to lower concentration. Movement of oxygen will be done from the lungs to the body, because in your lungs oxygen is more, in your body oxygen is less. That's why the movement of oxygen will take place from your body to blood. तो ऑक्सीजन आपके लंग से निकल करके ब्लड में चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के ब्लड से निकल करके आपके लंग्स में आ जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सहेलेशन आप उस CO2 को अपने बॉडी के बाहर कर दोगे। ठीक है, तो ये बातें हैं बच्चों। ठीक है, तो नाउ चिल्ड्रन, चलो आज तो हमारा टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा अच्छे से फिनिश अप करेंगे, थ्रू स्किन, थ्रू एयर होल, थ्रू गिल्स, थ्रू लंग्स, किस तरह से उसको हम पूरा करेंगे, दैट वी विल सी। ठीक है बच्चों? ओके, तो चिल्ड्रन नाउ एनी डाउट टू एनीवन? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हेलो सर।